Hello everyone, I'm a science teacher. Today I'm explaining a very interesting chapter about reproduction in plants. Plants किस तरह से reproduce करते हैं? In this chapter you will learn modes of reproduction, sexual reproduction in plant, dispersal of seed, asexual reproduction in plant. Label the different parts of flower. Flower के different parts को आपने क्या करना है? Label करना है, इनके नाम लिखने हैं. ये हो गया हमारा ये और इसे मिला के ये हो गया एक एंथर एक फिलामेंट मिलके बनाते हैं हमारा स्टेमन। ये हमारा फिलामेंट और ये जो राउंड पार्ट है ये हमारा एंथर। ये हमारे हो गए सेपल्स, ये हो गई हमारी पेटल्स, ये हो गए हमारे सेपल्स और ये हो गई हमारी ओवरी। नाउ इंट्रोडक्शन। We can see a number of trees and plants around us. We can also see a variety of beautiful flowers around us. How do we get so many plants of same kind? How do they contain exist? Living organisms reproduce to continue their race. Each organism multiples and reproduce its own kind of replace the ones that have died, thus to maintain the existence of species. जिस तरह से अलग अलग स्पीशीज अपने आप को बढ़ाने के लिए अपने जैसे ही दूसरे को ग्रो करते हैं उसी तरह से क्या करते हैं प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके लिए भी रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। अब इनका है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला है एसेक्सुअल। involves the special division of plants body into more plants of spore formation. New plant body is formed from a single parent. This happens under favorable conditions. Vegetative reproduction is also a type of asexual reproduction. अब हमारा asexual और vegetative एक ही तरह का reproduction है in which a cell tissue or part of organ of plant develops into a new organism. फिर आता है sexual reproduction. Takes place by formation of seed. It involves two parents and the fusion of male and female. ये तो एक sexual हो गया जो अपने आप हुआ single parent. ये हो गया sexual जिसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। Reproductive cell called leads to a form single cell called zygote. Sexual reproduction in plant. In sexual reproduction, the male and female gametes, sperm and egg, come together, एक साथ आते हैं, fertilize करते हैं, न्यूक्लियाई फ्यूज होती है और सिंगल सेल जाइगोट बनता है। फ्रॉम दिस सिंगल सेल ऑफन डेवलप्स विच शो हेरिडाइटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पैरेंट। इनके अंदर कुछ बदलाव होना शुरू होते हैं। Sexual reproduction in this only method, the reproduction is most of the flowering plants. You are aware that flower is reproductive part of plant. जो फ्लावर होता है जो फूल होता है वो एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट द फॉलोइंग पार्ट्स इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब जैसे कि ये देखिए स्टेमन एंड पिस्टल आर एसेंशियल रिप्रोडक्टिव। स्टेमन और ये जो पिस्टल है ये क्या है? ये बहुत ही जरूरी पार्ट है किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। related to reproductive process. It contrasts receptacle sepals petals are referred to necessary reproductive part of flower because they do not play direct role in reproduction. All these parts are shown in figure. फिगर में सब दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारी आती है पेटल्स। पेटल्स यानी पंखुड़ियां या पत्तियां are either colored or white are seen only when the flower blooms. तभी दिखाई देती है जब एक फूल खिलता है। They usually attract insect. इनका काम होता है इंसेक्ट को अपनी ओर खींचना, अट्रैक्ट करना। The sepals petal do not directly take part in reproduction. ये देखा जाए तो सेपल्स यानी ये नीचे वाला ग्रीन की जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और ये वाला पंखुड़ियां डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं हम रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं होती। फ्लावरिंग प्लांट नॉन फ्लावरिंग प्लांट इसमें फ्लावर आ रहे हैं इसमें नहीं आ रहे हैं। To observe the reproduction in plant, take warm water in beaker and dissolve spoonful of sugar in it. Add about 10 gram of yeast powder. Keep the beaker in warm place. After hour, put the drop of solution of glass slide. Observe under microscope. What do you observe? A few yeast cells have buds arising from them.
फिर आप देखेंगे कुछ जो ईस्ट सेल है उसमें बडिंग होना शुरू हो गई है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है, ये वाला, ये जो है हमारा मेल पार्ट है। द स्टेमन कंसिस्ट अ लॉन्ग नैरो फिलामेंट विद एन एंथर एंड इट्स विद एन एंथर। कहाँ गया एंथर हमारा? ये जो निकले हुए ना, ये इसके एंथर है, जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, which form the male gametes. Pollen grains appear powdery material on anther. इसके अंदर येलो कलर का एक पाउडर पाउडर फूल तोड़ा हुआ तो देखा होगा, यहाँ एक येलो कलर का पाउडर होता है जिसे हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। द पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। इट इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। The style is long narrow tube. The tip of ovary is called stigma. ये वाला हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है। The ovary is the swollen part of bottom of pistil. ओवरी, ये जो उठा हुआ फूला हुआ भाग है, ये क्या है? पिस्टल। इट कंटेन वन और मोर ओव्यूल, कैन कंटेन द egg cell, द फीमेल गैमेट्स ऑफ प्लांट ऑफ पार्ट। यानी ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये सारे प्लांट्स के फूल के अलग अलग पार्ट है। कभी आपने इनके बारे में देखा भी नहीं होगा, फूल के अंदर भी इतने सारे पार्ट्स हो सकते हैं, सब अलग अलग है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिलके क्या बनाते हैं? पिस्टल। ये हमारा फीमेल पार्ट हो गया, ये मेल पार्ट हो गया, ये हमारी पेटल्स हो गई, ये हमारी ओवरी हो गई जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक है। ऑब्जर्व द फ्लावर, आइडेंटिफाई द पार्ट्स। दिस इज डू इट योरसेल्फ। फ्लावर आर टू टाइप्स, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, सम प्लांट्स हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल पार्ट। कुछ के अंदर मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। द मेल फ्लावर हैज ओनली द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नेमली स्टेमन। द फीमेल फ्लावर हैज ओनली पिस्टल विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों ही एक प्लांट में अलग अलग हुए। कई होते हैं जिसमें दोनों एक ही में होते हैं, और कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फ्लावर्स विच कंटेन आइदर द मेल और फीमेल पार्ट इज यूनिसेक्सुअल। जिसमें दोनों होते हैं उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, जिसमें अलग अलग होते हैं वो बाइसेक्सुअल। वाटरमेलन, पपाया एंड चिली प्लांट्स है यूनिसेक्सुअल। ये क्या है? हमारे यूनिसेक्सुअल है। ये हमारा है वाटरमेलन प्लांट, जिसमें देखिए ये अलग हो गया और ये अलग। अब आते हैं बायसेक्सुअल, जिसमें दोनों ही है, मेल भी फीमेल भी। प्लांट्स लाइक लाइस, हिबिस्कस आर फ्लावर्स विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल। इसमें दोनों ही है, मेल भी और फीमेल भी। दिस मीन्स द फ्लावर हैज बोथ स्टेमन एंड पेटल। सच फ्लावर इज कॉल्ड बायसेक्सुअल और अ परफेक्ट फ्लावर। यानी एक ऐसा फूल जो खुद ही अपने जैसे दूसरे प्रोड्यूस कर देगा। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जो यहाँ एक येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है ना, उसको हम पॉलन्स बोलते हैं, to the stigma of flower called pollination. This process is important for continuity of life. अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो और नए नए फूल कैसे खिलेंगे, है ना? और दूसरे फूल किस तरह से रिप्रोड्यूस होंगे? Reproducing plant, as plant cannot move on either own, they need agent. अब ये pollen grains अपने आप तो ही नहीं उड़ के कहीं भी चले, उड़ के तो जाते हैं, लेकिन इनको भी और ज्यादा ग्रो करने के लिए और अच्छे फूल लाने के लिए एजेंट की या किसी सहारे की जरूरत होती है। ईच स्पीशीज ऑफ प्लांट हैज स्पेसिफिक मेथड ऑफ पॉलिनेशन। सारे प्लांट्स का पॉलिनेशन का मेथड अलग अलग होता है, सबका ऐसा नहीं है। नॉलेज दोज फ्लावर दैट हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और बाइसेक्सुअल, फॉर एग्जांपल एप्पल, स्वीट पी, चाइना रोज, रोज एंड ब्रिंजल, ये सब क्या है? बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट आते हैं। व्हेन अ फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन, अगर अपने आप ही पॉलिनेटेड हो गया तो क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। ठीक है। और अगर सिग्मा और स्टाइल अलग अलग होंगे तो क्या होंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। ऑटोगैमी इज सीन इन अ प्लांट्स लाइक टी, वाटर, wheat. Cross pollination is very common and brought about by outside agencies such as water, wind, bird and insect. अगर किसी बाहर के थ्रू होता है, पानी से बहकर, हवा से उड़कर, पक्षियों से या इंसेक्ट से। फिर आता है फर्टिलाइजेशन। पॉलन ग्रेन्स अपनी जगह पर पहुंच गए तो किस तरह से फर्टिलाइज होंगे या धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेंगे। व्हेन अ पॉलन ग्रेन्स फॉल ऑन स्टिग्मा, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिर जाएंगे
ऑफ अ फ्लावर द सेम काइंड डेवलप्स अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड पॉलन ट्यूब। फिर यहाँ एक ट्यूब डेवलप होने लग जाएगी जिसको हम पॉलन ट्यूब बोलेंगे। पॉलन ट्यूब किस में एंटर होगी? ओव्यूल में, यानी अंडे में एंटर होगी। द पॉलन ट्यूब ग्रो डाउनवर्ड थ्रू अ स्टाइल टुवर्ड्स ओवरी। द मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द पॉलन ट्यूब। अब इस पॉलन ट्यूब में क्या होंगे? हमारे मेल गैमीट्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। व्हेन द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब रीचेस द ओवरी, जब ये हमारी पॉलन ट्यूब इस ओवरी में पहुंच जाएगी, इट ओपन द मेल गैमीट एंटर द ओव्यूल। फिर मेल गैमीट इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, प्लस माइनस मिल जाएगा और यहाँ एक नया फ्लावर बनना शुरू हो जाएगा। द मेल गैमेट कैन यूटिन विद एग एंड नोन एज फर्टिलाइजेशन। It is process in which male gamete fuses with egg fertilize. The fertilization of egg is called zygote. जब दोनों चीजें मेल फीमेल मिल जाएंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइज होगा एक एग, जिसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। ऑब्जर्विंग द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब आप कोई भी फूल तोड़ के उसके पार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सीड एंड फ्रूट्स आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन। अब जब जाइगोट बन गया, मेल फीमेल मिल गए, द फॉर्मेशन ऑफ पेटल स्टेमन स्टाइल स्टिग्मा डीजेनरेटेड फॉल ऑफ। फिर ये क्या करते हैं? धीरे धीरे ये वाले पार्ट सारे गिर जाते हैं। ओनली द ओवरी परसिस्ट, सिर्फ ओवरी बचती है। वो जो नीचे फूला हुआ पार्ट होता है ना, ये वाला, ये जो फूला हुआ पार्ट है, सिर्फ यही बचता है। ये क्या है? हमारी ओवरी। Each fertilized ovule contains zygote. The zygote divides in grown in embryo. The fertilization developed ovule converts into seed. और फिर ये सीड में बदल जाता है। सीड में बदलेगा तो एक बीज से नया पौधा उग सकता है। अब ईच एम्ब्रियो कंटेन वन और टू कॉटिलिडोन्स, या तो एक बीज ही होगा या दो बीज ही। एक बीज हो गया हमारा, हम बोल सकते हैं गेहूं हो गया, मैंगो हो गया जिसमें एक बीज होता है, द्वि बीज जिसमें डबल डबल वॉल होती है, जैसे चना, पीस, मटर, यानी, है ना। After some time, the seed hardened and ovary ripened the fruit. Thus, the fruit ripened ovary. Some fruits may become fleshy and juicy, such as mango, orange, while other many hard, such as almond and walnut. अब देखिए, इसकी ये ब्राउन कलर की कवरिंग उतरी, सीड कोट उतरा, उसके अंदर से ये ग्रीन कलर का निकला। अब ये कॉटिलीडोन्स है, इसके दो हिस्से, ये एम्ब्रियो है और ये कॉटिलीडोन्स। सोक अ बीन सीड ओवरनाइट, रिमूव द सीड कोट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इनसाइड द सीड? उसकी बाहरी परत उतार दीजिए, फिर आप अंदर क्या देखेंगे? एन एम्ब्रियो अटैच टू कॉटिलीडोन्स। जब आप किसी मटर के दाने को या चने को भिगोकर रखे, अगले दिन उसका सीड कोट उतार दें और देखेंगे अंदर डबल लेयर होती है, वो क्या है? उसके कॉटिलीडोन्स है। सीड जर्मिनेशन, सीड किस तरह से जर्मिनेशन करता है? दिस इज रीड योर सेल्फ, आपको पता चल जाएगा। डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब एक सीड किस किस तरह से डिस्पर्स होता है? In nature, some kind of plants grow different places. This happens because seed and dispersal. कोई भी प्लांट कहीं भी ग्रो हो जाता है, वो क्यों? क्योंकि सीड या तो वाटर के थ्रू या हवा के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड के थ्रू इधर से उधर पहुंच जाते हैं और बीज को अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, तो वो वहीं ग्रो हो जाता है। Sometimes after a walk through a forest or field or park, you may have found seed or fruit sticking in your clothes. Did you try observe how these seeds were changing clothes? देखिए, ये क्या है? विंग है इसके। सीड ऑफ ड्रमस्टिक एंड मिपल, ये सीड है जो उड़ के कहीं भी चले जाते हैं। अब देखिए, द हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, सी है हेरी सीड ऑफ मोडार, और ये है जैंथिया का सीड। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ अ सीड ऑफ प्लांट वर फॉल टू द सेम पीस एंड ग्रो? सेम जगह पर गिर जाए और ग्रो हो जाए। देयर वुड बी सेवरल कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल, स्पेस। अब एक सीड को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, सब कुछ चाहिए। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। अब प्लांट्स किस तरह से ग्रो होता है? अपने सीड के डिस्पर्सल के थ्रू। इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट ओट्स सीडलिंग फॉर सनलाइट, water and minerals. It also enable the plant to invade new habitat for wider distribution. Seeds and fruit of plants are carried away by wind. अब सीड जो है वो किस तरह से अलग अलग जगह जाते हैं? कैसे? हवा से, पानी से, या एनिमल से। विंग सीड जो है, जिनके विंग्स होते हैं, वो अपने आप ही हवा से उड़ के चले जाते हैं, हल्के होते हैं, इधर से उधर पहुंच जाते हैं। सम सीड आर डिस्पर्ड बाय वाटर, कुछ वाटर के थ्रू जाते हैं। दीज फ्रूट्स आर सीड यूजुअली फ्लोटिंग एबिलिटी, क्योंकि इनमें फ्लोट करने की या तैरने की क्षमता होती है, इसलिए पानी के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। सम सीड डिस्पर्स बाय एनिमल, कुछ एनिमल के चिपक जाते हैं, किसी के सींग में, किसी के पैरों में,
फिर वो दूसरी जगह जाके ग्रो हो जाते हैं। सम सीड आर डिस्पर्स्ड व्हेन फ्रूट बस्ट, कई सीड जो होते हैं वो फ्रूट जो है अपने आप ही फट जाता है और अचानक उसके बीज दूर दूर जाके गिर जाते हैं तो ग्रो हो जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, देखिए फट गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, क्या हो गया, एक्सप्लोड स्प्रेडिंग द सीड, भिंडी पक गई और फटी और इसके बीज कहीं भी जाकर गिर गए और ग्रो हो गए। Some plants can multiply without sexual reproduction. In other words, male and female reproductive parts do not contribute in the process of formation of a new plant. Such process is called sexual reproduction or vegetative propagation. देखिए, जिंजर जिंजर की आपने एक बड ली, उसने मिट्टी में दबा दिया। अब ये बड क्या होगी, इसकी जो नोट्स हैं अलग अलग, ये देखिए लीव्स है, ये इंटरनोड है, ये स्केल लीफ है, ये बड है, ये नोट है। अब इसी के नीचे रूट्स ग्रो होने लगेंगी और ये किसी ना किसी नोट से नया प्लांट को ही ग्रो करने लगेगा। ये क्या हो गया, अपने आप से ही दूसरे में ग्रो करना, ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी। एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट सच एज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर may be propagated into a new प्लांट का ही या फ्रूट का ही कोई पार्ट फिर से नए पौधे में उगना शुरू हो गया, ये क्या हो गया, वेजिटेटिव। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो बाय सेपरेट पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्लांट। मोस्ट प्लांट विच रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली इन नेचर यूजुअली हैव स्मॉल डॉटर प्लांट्स। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज बनाना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, vegetative propagation is the method of sexual reproduction in which the new plants grow from vegetative parts without the help of any reproductive propagation. The plants like ginger, rose, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है जिन जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम, अब जो दबाए जाते हैं वो अंदर ही अंदर किस तरह से नया प्लांट ग्रो करते हैं, देखिए। फॉर एग्जाम्पल पटेटो बियर बर्ड्स, पटेटो में से कई बार आपने देखा होगा आलू ज्यादा दिन तक घर में पड़ा रहे तो उसमें से व्हाइट कलर की बर्ड्स उगना शुरू हो जाती हैं। उसी आलू को आप मिट्टी में दबा दे तो उसी से एक नया आलू ग्रो हो जाएगा। Potatoes grow lilies and also grow from underground stem. The underground stem of potato called tuber, वो जो उगते हैं उसे ट्यूबर बोलते हैं। And the underground stem of onion is called bulb. और जब किसी प्याज को उगाना हो तो प्याज को बो दीजिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, बल्ब। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय एरियल स्टेम, in some plants like mint, xanthium, strawberry, cinder branch originated the base of stem creep along the ground or just below the ground. It develops blood, bud and roots the point contact with the soil. अब इन्हीं की कोई रूट फिर से किसी मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाएगी तो वो नया पौधा उगाना शुरू कर देगी। These roots go into the soil and new plants grow from the roots. अब धीरे धीरे ये प्लांट बढ़ना हुआ और इसी की कोई बड छूट गई, कोई स्टेम छूट गई, उसे मिट्टी मिल गई तो उसी से नया पौधा ग्रो होना शुरू हो जाएगा। दस इट इज गिव राइज अ न्यू प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स, पत्तियों द्वारा। ब्रायोफिलम एक इस तरह का पौधा है जो अपनी पत्तियों से ही ग्रो होता है। इसके किनारे पे छोटी छोटी नई पत्तियां उगनी शुरू हो जाती हैं जिससे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। रूट्स ऑफ डहेलिया, यही डहेलिया भी करता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय मॉडिफाइड रूट, यानी रूट्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, अच्छे से बढ़ा लेती हैं। जैसे डहेलिया एस्पैरागस स्वीट पोटैटो ट्यूबरस रूट्स व्हिच आर swollen ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, इसकी जो रूट्स है वो क्या हो जाती हैं, अपने आप ही फूलना शुरू हो जाएंगी। जड़ें फूलेंगी तो वो एक नया फल बना देंगी। These roots have buds on them. When such swollen roots are buried in soil, they grow a new plant. वही जड़ें फूल जाएंगी और एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे ट्यूबर्स, जैसे पटैटो फूल गया, उसमें से मैंने अभी बताया था आपको व्हाइट व्हाइट कांटें निकलती हैं, उनको हम ट्यूबर्स बोलते हैं, वही ग्रो के बड़ा आलू बन जाते हैं। Potato is a modified stem and has bud. When a piece of potato contains a bud, starting into a आगे बढ़ना शुरू हो, इसे आप मिट्टी में दबा दीजिए, फिर क्या होगा, न्यू पोटैटो प्लांट प्रोपोगेट बाय दिस मेथड प्रोड्यूस न्यू पोटैटो प्लांट्स क्विकली। रिप्रोडक्शन इन पोटैटो, रीड दिस। अब आते हैं रनर्स जो अपने आप ही फैलते जाते हैं, जैसे हम घास बोल सकते हैं। मैनी प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेम कॉल्ड रनर्स दैट ग्रो हॉरिजॉन्टली, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, फैल जाते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं घास। पैरेलल टू ग्राउंड आर रनर मोस्ट ऑफ्टन टेक रूट्स, देखिए
ये रनर है का पौधा। या हम एक घास का भी उदाहरण ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी प्लांट है, ये भी क्या है, एक रनर है। बस एक पौधा लगाइए, इसे बस अपनी जड़ों की मजबूती बनानी है, ये धीरे धीरे आगे 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 फैलते जाएंगे। अब आते हैं हमारे बल्ब्स, ऑनियन, लिली और ट्यूलिप, ये सब क्या है, बल्ब्स के एग्जाम्पल। Bulbs are formed onion like lilies, garlic, tulip. They are thick, short underground stems which contain abundant reserve of food. They contain buds which grow into a new plant. इन्हीं की जो बर्ड्स है, जो गांठें हैं, वो नए प्लांट में ग्रो हो जाती हैं। फिर आती है कटिंग। कुछ प्लांट की स्टेम की हम कटिंग करते हैं, उनको मिट्टी में दबा देते हैं और वो नया ग्रो होना शुरू हो जाती है। मैनी प्लांट्स लाइक मनी प्लांट को एक पत्ता तोड़िए और उसको मिट्टी में दबा दीजिए, नया प्लांट होना शुरू हो जाएगा। रोज के आप स्टेम को काटिए और मिट्टी में दबा दीजिए, नया रोज प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। रिप्रोडक्शन बाय कटिंग, रीड दिस। Vegetative reproduction through fragment in algae. The green patches that float in pond. हरी हरी काई ऊपर तैरती हुई दिखती है ना कई बार पानियों में, क्या है हमारी एल्गी। They do not have a specialized part like leaves. एल्गी में अलग अलग फूल पत्तियां तना तो नहीं होते, बस ग्रीन कलर की एक लेयर होती है। These plants like living things multiple and reproduce by fragment. ये अपने ही फ्रेगमेंट या अपने ही टुकड़ों से और आगे बढ़ती जाती है। जैसे देखिए, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ फॉर्जिया है और ये फर्मेंटेशन है, किस तरह से ये अपने ही पार्ट्स को तोड़ तोड़ के आगे की ओर बढ़ती जा रही है। वेल कंडीशन आर आइडियल, अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया, तो ये क्या होगी, अपने ही प्लांट्स के या फ्रेगमेंट्स को तोड़ती जाएगी और आगे की ओर बढ़ती जाएगी। रिप्रोडक्शन इन फर्न्स, सम प्लांट लाइक फर्न्स रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। फर्न्स में जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअली भी होता है। A fern plant has specialized leaves with dark brown bodies which produce spores. When a spores fall in the ground, it develops into a heart-shaped plant body. This heart-shaped plant body produces male and female gametes. The male gametes एग फर्टिलाइज होते हैं, न्यू प्लांट बनता है, फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइफ साइकिल ऑफ फर प्लांट इन्वॉल्व्स बोथ asexual and sexual। देखिए, plants are not only organism reproduce asexually spores, vegetative reproduction through spores also found in fungi और yeast। लाइफ साइकिल ऑफ फर्न प्लांट देखिए, ये इसकी रूट्स हो गई, ये प्लांट हो गया, स्पोर्स निकले, छोटे छोटे यहाँ दाने से होते हैं, स्पोर्स निकले, ये स्पोर्स उड़े, नया प्लांट बना, स्पोरिंजियस एंड इंडीसियम। फिर ये स्पोर्स और निकले, स्पोर्स बस्ट आउट हुए, फिर ये नया प्लांट ग्रो हुआ और ये नया पौधा बनना शुरू हो गया, उसकी जड़ें निकल, अलग अलग स्पर्म्स में या अपने चीजों को तोड़ता हुआ ओवम में कन्वर्ट होगा और नया फन प्लांट ग्रो हो जाएगा। नई नई चीजें एक दूसरे से ही कनेक्ट होकर बनती जाएंगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, take half cup of warm water, add a teaspoonful of sugar and mix, add a pinch of yeast, sugar solution and leave the preparation undisturbed till morning. Next morning, take solution to spool, stir the solution gently and drop off it into a slide. Place a cover slip on a slide and observe under microscope. You will see many yeast cells. Of yeast cells will have developed spores indicating that they are reproducing। यानी एक से ही बहुत सारे और स्पोर्स जो है वो बन जाएंगे, इससे आपको पता चलेगा कि रिप्रोडक्शन हुआ है। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। आर्टिफिशियल यानी अलग अलग तरह से आप नए नए पौधे बना रहे हैं। कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। टिश्यू कल्चर, अलग अलग पौधों को एक साथ मिला के कटिंग करके ग्राफ्टिंग करके नई नई चीजें उगा रहे हैं। पहला आता है कटिंग, द डिवीजन ऑफ एनी प्लांट ऑर्गन फ्रूट स्टेम यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन इज डेफिनेड एज कटिंग। किसी की भी आपने कटिंग ली और उसे उगा दिया। द स्टेम कटिंग आउट अ फ्यू नोड्स ऑफ इंटरनोड्स, दिस कटिंग इज प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल, मिट्टी में लगा दिया। फिर क्या होगा, cutting the bud gives the shoot। The method is followed by case of rose, रोज को इस तरह से आप उगा सकते हैं। शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल। Similarly, potato and grow from slice of tuber, bud or eyes which give rise to a new plant। अब आपने रोज की कटिंग ले ली, बनाना की ले ली,
या हम बोल सकते हैं शुगर केन गन्ने की ले ली, उससे आप नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। वैसे ही आप आलू का भी कर सकते हैं। अब आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, एक तो आपने अलग प्लांट का स्टेम ले लिया और एक अलग का, और दोनों को साथ मिला के बांध के नया पौधा ग्रो कर दिया। जैसे ये देखिए, ये चेंज है, ये चेंज है, दोनों की स्टेम का कलर भी अलग अलग है, दोनों को मिला के आपने नया प्लांट बना दिया। ये हो गई हमारी ग्राफ्टिंग। कटिंग स्टेम ग्राफ्ट फ्रॉम अनदर प्लांट इज गुड वैरायटी इंसर्ट। इससे आप नई वैरायटी ग्रो कर सकते हैं। अब आता है लेयरिंग। इन प्लांट्स लाइक जैस्मिन एंड ग्रेपवाइन, द लोअर ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स इज बेंड डाउन एंड कवर विद मॉइस्ट ऑफ सॉइल। क्या होता है, ये भारी होने की वजह से झुक जाती हैं, झुकी और इन्हें मिट्टी मिली तो ये मिट्टी में दब गई, और यहीं से इनमें से नई जड़ें उगी और ये नया प्लांट होना शुरू हो गया, और इसको आपने यहाँ से कट कर दिया, ये प्लांट अलग हो गया, ये प्लांट अलग हो गया। ये हो गई हमारी लेयरिंग। अब आता है हमारा टिश्यू कल्चर। Tissue culture is an artificial method of vegetative propagation. It is undertaken in specialized laboratory. Tissue culture जो है ये laboratories में ही किया जा सकता है. It is based on principle that a new plant can be grown from a single cell. A piece of stem, leaf, root tissue is placed under special condition. इनके लिए स्पेशल लाइटनिंग या स्पेशल कंडीशन होती है जहाँ पे ये ग्रो कराए जाते हैं। Nutrients and plants hormones closed container. The container will be plant tissue is incubated. इनको इंक्यूबेशन में रखा जाता है, अच्छी सी कंडीशन में, अच्छे लाइट टेम्परेचर में रखा जाता है। द सेल्स ऑफ टिश्यू डिवाइडेड इनटू ईच गिव राइज न्यू प्लांट। और देखा जाता है कि हर एक टिश्यू से एक नया प्लांट ग्रो हो रहा है। थ्रू टिश्यू कल्चर मैनी प्लांटर्स कैन बी जनरेटेड। इसके जरिए आप नए नए प्लांटर्स उगा सकते हैं। डेवलपिंग प्लांट टिश्यू, प्लांटर्स इन कल्चर, टिश्यू कल्चर इन प्लांट। देखिए यहाँ पे टिश्यू का यूज किया गया, प्लांट आपने ग्रो कर दिया। एडवांस propagation, the plants which do not produce variable seeds and propagated by this method, example ये हो गए। It is cheap and rapid method propagation. Plants developed through vegetative propagation from a single plant constitute a genetically uniform population called clones। यानी सेम दूसरा बनाना, क्लोन्स का मतलब होता है अपने ही जैसा सेम दूसरा बनाना। Plants can be raised with desired featured by choosing। अब आप प्लांट्स को अपने ही अकॉर्डिंग नए फीचर्स के थ्रू उगा सकते हैं कि हम चाहते हैं कि ये प्लांट इतने फल दे और इसमें ये फीचर हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसे उगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्राफ्टिंग एंड स्टॉक हैव करेक्टर दैट आर टू बी रेज्ड अ न्यू प्लांट। जिस तरह का आप नया पौधा चाहते हैं उस तरह का ही नया पौधा ग्रो करेगा। नाउ recapitulate an encyclopedia. Read yourself now. Checkpoint time. The reproductive part of a plant is the flower. The process of fusion of male and female gametes is called reproduction. Mature ovary forms fruit. A spore producing plant and mold. Rose plant can reproduce by stem. Now filling in the blanks. Production of new individual from vegetative part of parent is called vegetative vegetative propagation. Flowers may have either male and female reproductive part. Such as flower is called unisexual. Unisexual flower भी लिख देते हैं, unisexual flower. After pollination, pollen grains develop into dash that grow down into a style, pollen tubes. The fruit is the ripened part, ovary, ovary of flowering
plant. Now tick right the correct and cross out the incorrect. Seeds should be planted under the parent plant. False. Vegetative propagation is a very slow and time consuming method of reproduction. False. In grafting, the shoot portion is called root. False. Flower is the reproductive part of a plant. Is true. Now question D, match the following. Stamen, male reproductive part. Pistil, female reproductive part. Watermelon flower, unisexual flower. Hibiscus, bisexual flower. Fertilized egg, zygote. Now this is complete your chapter. Now read this chapter and rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.